Okay, so welcome to this class. We will be starting a very important text, Macbeth. Okay, now before we start the text, as you can see on the screen, uh, let us have a quick discussion on the story of Macbeth. It is written by one of the greatest playwrights of the world. In fact, he is regarded as the greatest playwright of the world, William Shakespeare. And amongst the four great tragedies which he has written, Macbeth is the shortest. Okay. The other three tragedies are Othello, King Lear, and Hamlet. So, in total, he has written four tragedies apart from historical plays and all. And Macbeth you have in syllabus. Now, the story of Macbeth is very interesting. It is the example of a proper tragedy. What do I mean by proper tragedy? A tragedy which consists of all the features of a proper tragic play. Suppose if I talk about the main character of the play, that is Macbeth himself. Macbeth starts off his life as a very good human being. And that is one of the definitions of a tragedy, that the tragic hero will start his life in a very normal, good manner, but due to some mistake committed by his own action, he will face his own downfall. Macbeth also shows us this kind of thing. In Macbeth, we find that he starts off his life as a good human being. In fact, he was the Scottish general. The play takes place in the country of Scotland, and we find that Macbeth has gone to fight against Norway. And given his bravery, given his courage, he almost single handedly defeats the Norwegian army and offer victory to Scotland, much to the delight of the Scottish people, and they were celebrating like anything. Now, as Macbeth was returning victorious from the battle, along with one of his closest friends, Banquo, another character whom we will find in the play, we find, or rather Macbeth finds, so as he was returning victorious from the battle, we find that Macbeth and Banquo, they meet three weird looking sisters. They were actually witches. The three witches welcome Macbeth with the three titles: Thane of Glamis, Thane of Cawdor, and the third one says that you will be the King of Scotland hereafter. And let me tell you, King of Scotland, Duncan, was alive at the time Macbeth received these three prophecies from the witches. And he was shocked that how can I be the king when the king himself is alive and sitting on the throne of Scotland? The moment he was wondering and thinking about his future, two messengers came from the palace of Duncan to greet him with the title of the Thane of Cawdor. Now, what is Thane? Here we find that yes, Thane of Cawdor is what he has got the title of. Okay. Now he was absolutely shocked that he knew that he was the Thane of Glamis. Glamis is a place in Scotland, is a province in Scotland, and he knew that he was the Thane of Glamis already. But how can he be the Thane of Cawdor when the Thane of Cawdor himself was alive also? Ross and Angus, the two messengers who came from the palace of Duncan, they said that yes, the Thane of Cawdor is alive, but he is waiting death sentence. He will be given death sentence. Why? Because he has betrayed the Scottish army by going
against them and fighting for Norway. As a result, Duncan, the king of Scotland, the present king of Scotland, is so angry with him that he has given him death sentence. Very good. Now the post is vacant, and that post is offered to Macbeth. Now Macbeth finds that without anything, I have got two posts, one after another. I was already the Thane of Glamis, and just standing here, I found that I have become the Thane of Cawdor. When the Thane of Cawdor himself was alive, but I have been given that post. So, the three amongst the three prophecies of the witches, two have already been fulfilled. That means the third one will surely be fulfilled. That is, I will surely become the king of Scotland. And Banquo, another character who was along with Macbeth, and he also came from the battle, he also fought in the battle. He asked the witches that Macbeth, you have given Macbeth three prophecies, and two of them have already been fulfilled. What about me? Tell something about me also. What lies ahead of me? What lies in my future? Then the three witches. Actually, this is not the play that you are reading. This is the story version, but I am just giving the story of the actual play which William Shakespeare has written, so that it becomes easier for you to understand as we go line by line. So Banquo asked that, tell something about me. What will be my future? How will I be, Mano, in 10 years' time? Okay. Then the witches prophesied to him that you will be, and I'm quoting exactly from the play, you will be lesser than Macbeth, yet greater. You will be not so happy, yet happier. Now, the witches spoke something in riddles. रिडल्स में बात करते थे. एज अ रिजल्ट आधा समझ में आता था लिसनर को, आधा समझ में नहीं आता था. बैंको आस्क्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइंस कि मैं लेसर देन मैकबेथ रहूंगा फिर भी ग्रेटर बनूंगा, लेस हैप्पियर होऊंगा फिर भी मोर हैप्पियर हो जाऊंगा, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन. Because Banquo was a rational kind of man and Macbeth was emotional kind of man. He had ambition in his mind that he will become the king of Scotland. But Banquo का उसने सारे ambition नहीं था, वो practical आदमी थे. हाँ, उनको पता था उनका limitation क्या है. फिर भी out of curiosity he wanted to know and he wanted explanation of these lines. कि lesser than Macbeth yet greater, not so happy yet happier, इसका मतलब क्या है? Then the third witch explained to him that you yourself will not become the king of Scotland, but your 8 generations will become the kings of Scotland one after the other. That means yourself you will not be sitting on the throne of Scotland. That means he will be lesser than Macbeth, क्योंकि मैकबेथ तो खुद राजा बनने वाले, लेकिन तुम राजा नहीं बनोगे कभी. इसी हिसाब से देखा जाए तो यू विल बी लेसर देन मैकबेथ. बट आपके आने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 पीढ़ियां राजा बनते जाएंगे. सो एज अ प्राउड फादर यू विल बी हैप्पियर देन मैकबेथ. बट what will happen to Macbeth? Macbeth himself will become the king of Scotland, but after he dies there will be no successor, because Macbeth was a childless man. He didn't have any child. That is why he didn't have any future generation. So once he died, his life will be dead and gone. But even after the death of Banquo, 1, 2, 3, 4 करके 8 generation will rule over Scotland and become the kings of Scotland. तो एक हिसाब से देखा जाए तो लेसर देन मैकबेथ, दूसरे हिसाब से देखा जाए तो ग्रेटर देन मैकबेथ. एक हिसाब से देखा जाए नॉट सो हैप्पी, और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो हैप्पियर देन मैकबेथ. ओके, with these prophecies being told, Macbeth went straight to the castle of Duncan. Okay, and he went to the castle of Duncan, and Duncan was absolutely pleased to receive Macbeth because he knew about the single-handed effort that he did
in giving victory to Scotland, and he wanted to honor him. He already honored him with these two titles, Thane of Glamis and Thane of Cawdor, and also he wanted to make more honorable presents for him. And that was the day when Duncan uh, gave his son the post of the Prince of Scotland. Now, Duncan told before everybody, suppose the way you are sitting, king in the palace, telling to everybody that after me, the next king of Scotland will be Malcolm. Now, who is Malcolm? Malcolm is the elder son of Duncan. And he had two sons, Malcolm and Donalbain. So, Malcolm was the elder son and Donalbain was the younger son. And Duncan told before everybody that after my death, Malcolm will become the king of Scotland. Now, this is the thing that Macbeth did not like at all. कि मैं इतने सारे काम किया, इतना सारा एफर्ट दिया टू गिव विक्ट्री टू स्कॉटलैंड, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैं बैटल को जीता, और आई होप्ड दैट आई विल बी डिक्लेयर्ड एज द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो मुझको मेरा थर्ड प्रोफेसी फुलफिल्ड हो जाता. बट ये नहीं हुआ, बिकॉज डंकन loves me all right, but he loves his son more than me. That's why he offered him the Prince of Scotland. Prince मतलब उसके बाद वो राजा बनने वाले, ये तो कंपल्सरी है. But Macbeth thought that how can I be the king of Scotland? What I need to do to become the king of Scotland? Meanwhile, Banquo warned him कि देखो तुम मेरा दोस्त हो, मैं वेल विशर के हिसाब से तुमको एक वार्निंग दे रहा हूं. ये जो विचेस है ये क्रीचर्स ऑफ डार्कनेस है, तो क्रीचर्स ऑफ डार्कनेस कभी भी इंसान का भला नहीं चाह सकता. इसलिए ये दो प्रोफेसी आपका फुलफिल हो गया, बट थर्ड प्रोफेसी फुलफिल होना इतना आसान नहीं है. मुझको लग रहा है कुछ ट्रैप में वो तुमको फंसाने जा रहे हैं. सो डोंट गो बाय द ट्रैप ऑफ द विचेस. बट मैकबेथ थॉट ये बेचारा जेलसी में मुझको बोल रहे हैं, क्योंकि उनका तो कुछ मिला नहीं, वो तो खुद राजा नहीं बनेंगे. आप बाद में क्या होगा वो अलग सा बात है, लेकिन वो खुद तो राजा नहीं बनेंगे. इसलिए आउट ऑफ जेलसी में भी ही इज टेलिंग मी नॉट टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है. एक्चुअली मैकबेथ बिकम सो इमोशनल at that time that he couldn't understand the practical side of the words of Banquo. Okay. Now, as he understood that becoming the king of Scotland is very difficult for me, what he thought of doing, he wrote a letter to Lady Macbeth. Okay. Now, who is Lady Macbeth? Another very important character. मैं पहले character स्टोरी बताते बताते कैरेक्टर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि स्टोरी जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा. सो लेडी मैकबेथ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले, एंड व्हेन he writes the letter to Lady Macbeth, we see Lady Macbeth coming on the stage and reading the letter with a kind of candle in her hand, reading the letter in front of the audience, and the marvelous acting that the woman made on the stage is absolutely surprising to everyone, because with a candle in the left hand and the letter in the right hand, she is reading out loudly that yes, you have become the Thane of Glamis, you have also become the Thane of Cawdor. Now it is my duty to make you the king of Scotland, because ये जो मैल्कम वो उसको फ्यूचर किंग बना दिया तो, लेकिन मैं उनको बनने नहीं दूंगी. रादर एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल मेक यू द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. कारण क्या था? बिकॉज मैकबेथ तो चाइल्डलेस था. अब चाइल्डलेस होने की वजह से एक मदर का, एक औरत का सपना होता है मदर बनना. एज अ रिजल्ट शी थॉट दैट आई कैनॉट बिकम द मदर. मैकबेथ अगर चाइल्डलेस है तो वो भी चाइल्डलेस है. एज अ रिजल्ट शी थॉट कि अगर मेरा पहला सपना सक्सेस नहीं बना तो डेफिनेटली आई विल मेक द सेकेंड ड्रीम come true. How? By becoming the Queen of Scotland. Because if I can make Macbeth the King of Scotland,
obviously I will become the queen of Scotland. Clear? Secondly, मैकबेथ जब वापस आए घर, बोला कि लेटर पढ़े आप? बोला हाँ पढ़ा. तो बोली, मैकबेथ said to her that there is a great news for us, a very good news is there for us. बोला क्या गुड न्यूज है? राजा डंकन हम लोग को सम्मान देने के लिए आज की रात इधर आ रहे हैं. He is coming tonight in our castle in order to pay tribute to my victory, to my achievement. Now it is the time of Lady Macbeth to take over the matter, saying that राजा जाएंगे कब? आ तो रहे हैं आज रात, जाएंगे कब? बोला ऑब्वियसली कल सुबह होते ही चले जाएंगे, इतना बिजी पर्सन है, 2 दिन थोड़ी रहेंगे हमारे घर. Then Lady Macbeth says, tomorrow's sunrise he will never see. I repeat, tomorrow's sunrise he will never see. Macbeth was absolutely shocked to hear this. What are you saying? It is a king coming, not a normal person, a very famous person. The very king of the country is coming to our house. It is a matter of great honor for us. So what are you saying? कल के सूर्य सनराइज वो नहीं देख पाएंगे? बोला हाँ, जो मैं कह दी. अब कैसे होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो. Now what she did, Duncan came, she fed him well, अच्छे से खिलाए. उसके बाद वाइन, स्कॉटलैंड का एक कस्टम है पीना, वाइन फाइन पिलाए. उसके बाद उसका बॉडीगार्ड जो था, सिक्योरिटी जो थे डंकन का, सबको अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए और सुला दिया. नाउ इट इज द टाइम of what? Of murder. When Lady Macbeth goes to the room of Macbeth to tell him कि ये लो चाकू, जाकर एक बूढ़ा आदमी तो है, वो भी निरस्त्र है, उसको मारना कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा. एंड यू आर सो ब्रेव, माय हस्बैंड, यू आर सो ब्रेव, यू फॉट ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली एंड वोन द बैटल अगेंस्ट नॉर्वे. हाँ, तो जाओ हाथ में चाकू लो और ये मार दो. मैकबेथ वॉज ट्रेम्बलिंग इन फियर कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता. हाउ कैन आई डू सो? बिकॉज हाउ कैन आई मर्डर द किंग हु हैज कम टू माई हाउस इटसेल्फ? मेरे ही हाउस में मैं कातिल बनूंगा उनका? नहीं, क्योंकि सुबह होते होते तो पता चल जाएगा. तब लेडी मैकबेथ बोली कि आप मर्डर करो, जो ब्लड आएगा वो ब्लड में बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके साथ आए थे, उसके बॉडी में पूरा में मिक्स कर दूंगी, ताकि सुबह होते वक्त अगर कोई देखे तो शक जाएगा उन लोगों के ऊपर, और आप ड्रेस फेस चेंज कर लोगे, हाथ धो लोगे. इट विल बी एब्सोल्युटली इजी फॉर यू टू वॉश ऑफ द मैटर. मैकबेथ थॉट, नो आई कैनॉट. I simply cannot go to murder the king because I have quite a few reasons why I should not murder the king. Because first of all, he is the guest, I am the host. Because today he is residing in my house. So how can I kill? I am a host, I should protect him. How can I kill him? First reason. Second reason क्या है? Second reason है, वो इतना अच्छा किंग है जिसका सबके साथ अच्छा रिश्ता और सभी प्रजा उनके लिए अच्छा रिपोर्ट लाते हैं, और स्कॉटलैंड को इतना अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं. उसके टेन्योर में, उसके रेन में, उसके क्या बोले राजत्व काल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिवाय ये नॉर्वे का वॉर ही खाली हुआ था, और कुछ नहीं हुआ था. सो हाउ कैन आई किल सच अ गुड किंग? यू टेल मी, हाउ कैन आई किल सच अ गुड किंग? इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ठीक है. Then Lady Macbeth told him something कि तब आप जब मुझको चिट्ठी लिखे थे और राजा होने का सपने के बारे में बताए थे, तब क्या आप दारू पिए थे? दारू पीकर ये बात बोले थे? आप सेंस में नहीं थे क्या? अब दारू का नशा निकल गया. Now you are back to your normal self and saying that I cannot murder, because unless until you murder Duncan, there is no way you can become the king of Scotland. So accept it और लेट इट गो. अगर एक्सेप्ट करो, आज के रात ही हम लोग को थोड़ा टेंशन होगा, कल के सुबह से शुरू करके आने वाले कल आप
ऑब्वियसली अच्छे तरीके से लीड कर पाओगे, यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है. बट मैकबेथ वाज सेइंग दैट नो, आई कैन नॉट डू सो, आई सिंपली कैन नॉट डू सो because I love the king so much, I respect the king so much. Then Lady Macbeth told something which will simply shock you like anything. Lady Macbeth told that you cannot kill such an old king like Duncan. Now, had I been in your place, मैं अगर आपकी जगह होती तो मानो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी नवजात शिशु को, और उस समय आकर अगर कोई मुझको बोलती कि तुमको रानी बना दूंगी और तुम रानी बनने वाले हो, हाँ क्या करोगे घर में रहकर हाउसवाइफ बन के, देन आई वुड हैव डैश्ड द बेबी एंड स्मैश्ड हिम इन द वॉल. ये सुनकर मैकबेथ चौंक गए, बोले क्या बोल रही हो तुम. बोले हाँ, अगर मुझको मौका नहीं मिला मां बनने का अलग बात है, लेकिन अगर मिलता, फिर भी अगर ये ऑफर भी मिलते साथ साथ, तो मैं ये अपना बेबी को भी मैं मार देती. तो तुम एक बूढ़ा किंग को नहीं मार पा रहे हो. व्हाट टाइप ऑफ अ मैन यू आर. नाउ मैस्कुलिनिटी को लेकर बात किया, मैकबेथ गॉट एब्सोल्युटली फ्यूरियस. वो फ्यूरियस हो गए, वो एकदम शौक. बोले नहीं, आई विल ना. उसके पहले लेडी मैकबेथ बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो चाकू मुझको दो, मैं जाकर मारूंगी. She went to the room of Duncan, and Duncan was sleeping absolutely peacefully without any tension, because he knows that he is in the castle of Macbeth and he loves Macbeth very much. That's why Macbeth will not do anything harmful to me. उसको पता ही नहीं था क्या प्लान चल रहा बीच में. तो मैकबेथ लेडी मैकबेथ गए हाथ में चाकू लेकर, मारने जा रहे थे. उनका मतलब लेडी मैकबेथ का बड़ा हुआ पिता का जो शक्ल सामने आ गया. She dreamt of her heavenly father and could not dare to murder the king, and came back as she took the knife with her. Macbeth was having tension. बोले क्या मर्डर हो गया. बोले नहीं, मर्डर नहीं कर पाए. बोले क्यों, इतना बड़ा बड़ा तो डायलॉग दे रहे थे. बोले नहीं, मैं मर्डर इसीलिए नहीं कर पा रही थी पाए क्योंकि when I just took up the dagger and wanted to murder the king, the face of my dead father came in front of me, and I found a resemblance of my dead father's face with the face of the king. That's why I could not. यही है रियल लेडी मैकबेथ. और वही लेडी मैकबेथ कुछ समय पहले बोली थी क्या, कि अगर मैं ब्रेस्ट फीड कर रही होती और उस समय अगर मुझको किंग क्वीन बनने का कोई सपना दिखाता, ऑब्वियसली मैं ये बेबी को भी इधर वॉल में नष्ट कर देती. लेकिन वो नहीं कर पाती. एक्चुअली वो नहीं कर पाती. ये सिर्फ किए थे प्रोवोक करने के लिए. किसको, मैकबेथ को. तब जाकर मैकबेथ गया, हाथ में चाकू लिया. फाइनली ही कमिटेड द मर्डर. व्हेन daybreak happened, मतलब when the morning came, when it was morning, the murder got discovered and everybody started shouting कि what happened in the very house of Macbeth, such a great murder took place, how can that be possible. तब से जाकर लेडी मैकबेथ पूरे घटना, पूरे सिचुएशन को संभाला और बोली कि नहीं, वो एक्चुअली हो सकता है कोई बॉडीगार्ड, कोई सिक्योरिटी गार्ड ने किया होगा, हम कैसे करें, हम लोग तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग तो उसका होस्ट थे. तब आहिस्ता आहिस्ता जाकर बैंकों को पता था कि कुछ गलत काम मैकबेथ ने किए थे. नाउ as the post was vacant because the king got dead, and according to the rule, कौन राजा बनने वाले, मैल्कम, जो उसका एल्डर सन थे. हाँ, लेकिन मैल्कम एंड डोनाल्बेन ये मर्डर को देखकर इतना ही डर गए और इतना वो क्या बोले कायर थे, वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पाए. एज अ रिजल्ट दे फ्लेड, वो भाग गए. मैल्कम भाग गए इंग्लैंड और डोनाल्बेन भाग गया आयरलैंड. दोनों अलग थलग क्यों भागे, एनी आइडिया, दोनों अलग थलग क्यों भागे थे. बिकॉज इफ दे गेट कॉट they will not be caught together. हाँ, एक इंग्लैंड में रहे, एक आयरलैंड में रहे, तो अगर कैच हो भी जाए, तो पकड़ भी जाए, एक होगा, दूसरा बच जाएगा.
ठीक है, तो अलग हो गए. नाउ द सिचुएशन वॉज एब्सोल्युटली वेकेंट, द थ्रोन वॉज वेकेंट. Obviously, Macbeth was the best person to become the king of Scotland, but there is a custom in Scotland. किंग बनने से पहले आपको शपथ लेना पड़ता है. सभी कंट्री का नियम है, हम लोग का कंट्री का भी नियम है. हाँ, तो इट इज कॉल्ड द ओथ टेकिंग सेरेमनी. ठीक है, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी जब शुरू हुई, उसके पहले मैकबेथ ने बैंको को इनवाइट किया कि तुम आना, तुम आज के ये जो सेरेमनी होने वाला है उसके लिए तुम गेस्ट ऑफ ऑनर हो, स्पेशल गेस्ट हो, तो तुमको तो आना ही पड़ेगा. बोला हाँ जरूर आऊंगा, तुम राजा बनने जो वाले हो. एंड अ प्लेस वाज रिजर्व फॉर हिम एट द बैक. हाँ, एक बैक सीट में उसका एक प्लेस रिजर्व हुआ था बैंको का. और बैंको को मैंने मैकबेथ को पता था कि बैंको किधर से आने वाले, और उनका एक सन था फ्लियांस, FLENCE, फ्लियांस और बैंको किसी जगह से लौटने वाले थे. बोला हाँ मैं समय में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे सेरेमनी में मैं जरूर आऊंगा, थोड़ा काम है, काम करके आऊंगा. बोले मैकबेथ टुक द इंफॉर्मेशन कि तुम कब लौटोगे, कहाँ से आ रहे हो, तो ताकि जब वो लौटेंगे बैंको और फ्लियांस को वो मार दे पाए. इसको कौन? मैकबेथ. क्योंकि मैकबेथ को पता था ये बैंको ही एक कांटा है जिसको मैं अपरूट ना करूं, हाँ अगर उखाड़ ना दूं तो मेरे लाइफ हेल हो जाएगी. क्योंकि बैंको नोज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट ही डिडंट नो दैट मैकबेथ खुद ही टारगेट बन जाएंगी. ठीक है, तो बैंको जब आ रहे थे, अंधेरा था, जो हायर्ड असैसिन्स होता है, सुपारी किलर, उसको हायर किया था और उसको देकर वो मारे बैंको मैकबेथ ने. जब मैसेंजर ने आकर न्यूज दे रहे कि सर देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, देयर इज अ बैड न्यूज फॉर यू, व्हिच वन शुड आई टेल फर्स्ट. मैकबेथ बोला कि गुड न्यूज, द गुड न्यूज इज दैट बैंको इज डेड, बैंको हैज बीन मर्डर्ड सक्सेसफुली. पर तो बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज इज दैट उनका जो सन था फ्लियांस वो भाग गए. ना चिंता का बात तो यही है, क्योंकि बैंको अगर जीवित भी रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनका चिंता था कि आने वाले 8 पीढ़ियां राजा बनेंगे बैंको का. बैंको तो खुद राजा नहीं बनेंगे, तो उसका उतना लालसा भी नहीं था. तो वो अगर जीवित भी रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर सन जीवित रह गया तो ऑब्वियसली उनसे तो बाकी 8 पीढ़ियां जन्म लेते रहेंगे और सभी जाकर राजा बनेंगे. और मैकबेथ खुद तो राजा बनने वाले हैं, लेकिन उसका जेलसी था कि मैं चले जाने के बाद मेरा सक्सेसर कोई नहीं रहेगा, लेकिन बैंको आनंद लेंगे, क्योंकि बैंको का 8 पीढ़ी 8 जनरेशन एक एक करके राजा बनेंगे. आई कैनॉट टॉलरेट दैट. इसलिए वो दोनों को मारने गया था, लेकिन नहीं मार पाया. ठीक है, तो इसी तरह हम स्टोरी में डिटेल्स में पढ़ेंगे. इसी तरह बहुत सारे माने मैकबेथ हैज बिकम अ मर्डरर. सो हाउ आई डिड स्टार्ट द डिस्कशन दैट मैकबेथ इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज लाइफ as a good human being, but due to a mistake committed by his own action, he will have to face his own downfall. What was the mistake he committed? The mistake of going for the murder of the king. Had he waited for his opportunity, he would have surely become the king of Scotland. वो हड़बड़ी करने गया और ये जल्दबाजी के कारण और ये गलत रास्ता चुनने के कारण उसका पतन हो गया. कैसे हुआ इसका भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं. Macduff. There is a character called Macduff. Macbeth नहीं, Macduff. 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 Macduff was a child who also was in the Scottish army, and वो किसी तरह उसको पता चल गया था कि मैकबेथ ही सब मर्डर कर रहे हैं एक एक करके, और जब तक मैकबेथ जिंदा रहेगा तब तक स्कॉटलैंड का सत्यानाश हो जाएगा. इसीलिए मैकबेथ को मारना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, हाँ कंपल्सरी है. उसका जीना खतरनाक होगा स्कॉटलैंड के फ्यूचर के लिए, बिकॉज ही हैज बिकम अ मर्डरर, ब्लडी क्रिमिनल. तो क्या किया मैकडफ ने? इंग्लैंड चले गए. इंग्लैंड में पता है वो मैल्कम छुपे थे, तो उधर जाकर इंग्लैंड का उस समय का जो राजा एडवर्ड द सेकेंड या थर्ड ऐसा कोई था उस समय, उसके
परमिशन लेकर इंग्लैंड का आर्मी आज भी माना जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, उस समय तो और भी थे। तो इंग्लैंड का राजा का परमिशन लेकर वो इंग्लैंड का आर्मी का आधा सेना ले आए और किसके साथ लड़ने के लिए? मैकबेथ के विरुद्ध लड़ने के लिए ले आए। नाउ इमेजिन मैकबेथ इज अ सिंगल कैरेक्टर, उसके साथ लड़ने के लिए एक आर्मी चाहिए। नाउ हाउ ब्रेव ही इज, we can understand how brave the character of Macbeth is, because he is a single person, and to fight against him, Macduff, who himself was also a great soldier, but he understood that if I fight with Macbeth alone, I will never be able to defeat him. Rather, I have to take the help of the army. हाँ, इसलिए और ऐसे वैसे कंट्री का नहीं, सीधा इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से आर्मी का हाफ लाए और इंग्लैंड का आर्मी का मदद लेते हुए वो मारा। कैसे? Meanwhile, मैकबेथ, when Macbeth is seeing that सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, हाँ राजा तो मैं बन गया, लेकिन राजा का एंजॉय मैंने राजा बनने का एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज स्कॉटलैंड का जो आर्मी, स्कॉटलैंड का जो आदमी लोग, सिटीजन, वो मुझको पसंद नहीं कर रहे। नाउ व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू अगेन गो टू द विचेस। विचेस के पास जाकर उसका भविष्य क्या होने वाला है, आने वाले कल में क्या होने वाला है, ये उनसे पूछा। नाउ दिस टाइम अराउंड, see, the first meeting was accidental because he was returning from the battle. He didn't know that 3 witches will come in front of him. But second time, उन्होंने गया 3 sisters के पास और उन्होंने पूछा खुद से कि मेरा फ्यूचर में क्या लिखा है, थोड़ा बताओ। तब 3 witches, they were making a preparation for their food. हाँ, वो कढ़ाई में कुछ खाना पका रही थी, तो बोले कि हम ऐसे लिख नहीं रहे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई अभी स्टोरी। हाँ हाँ हाँ। सो द थिंग इज ही मेट देम डेलिबरेटली सेकेंड टाइम। अब सेकेंड टाइम जब मीट किया तब बोला कि बोलो मेरा फ्यूचर में क्या है। नाउ द 3 विचेस टोल्ड हिम कि कौन बोलेंगे, हम या हम लोग का 3 ठो स्पिरिट आकर, बोलो जैसा मर्जी, 3 ठो स्पिरिट आकर बोले तो भी चलेगा, आप बोलो तो भी चलेगा, लेकिन मुझको सुनना है मेरा भविष्य के बारे में। नाउ द 3 स्पिरिट्स केम अप फ्रॉम द कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन मतलब बड़ा कढ़ाई को कॉल्ड्रॉन बोलते हैं। तो कॉल्ड्रॉन से 3 ठो स्पिरिट निकल के आए। नाउ लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 स्पिरिट्स। फर्स्ट स्पिरिट हैड Now, the first spirit had a sapling in her hand. एक बेबी, हाँ, हाथ में सैपलिंग लेकर आए थे। इसका क्या मतलब है? मैकबेथ जब तक जीवित थे या जीवित रहेंगे, स्कॉटलैंड का सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, उसके साथ ना नेचुरल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, नेचर भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, क्योंकि वो नेचर को भी छोड़ेंगे नहीं, इतना ब्लडी क्रिमिनल हो गए थे। तो ये सैपलिंग हाथ में लेकर जो बेबी का स्पिरिट आए, वो यही दिखाते हैं कि फ्यूचर में मैकबेथ जाते जाते नेचर फिर से रिस्टोर्ड होगा, फिर से एफोरेस्टेशन होगा, फिर से नेचर अच्छे तरीके से डेकोरेट होगा। ठीक है, ये पहला स्पिरिट का कारण। दूसरा स्पिरिट एक ब्लडी चाइल्ड के रूप पे आए। ब्लडी चाइल्ड मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्लड को लेकर खेल रहे हैं, ब्लडी चाइल्ड मतलब नवजात शिशु। जब शिशु का जन्म होता है उसके बॉडी में ब्लड फ्लड लगा रहता है। तो ब्लडी चाइल्ड का मतलब था कि तुम्हारे चले जाने के बाद वही 8 तो पीढ़ियां बैंकों का एक एक करके राजा बनेंगे और तुम्हारा कोई नहीं रहेगा सक्सेसर के हिसाब से। थर्ड स्पिरिट एक आर्म्ड हेड, मतलब वो किंग ऑलरेडी बन गया ऐसा दिखाया। तो एक एक स्पिरिट क्या बोला? पहला स्पिरिट बोला कि तुम 10 of 5 से दूर रहो। डायरेक्टली बोला, इस बार कोई रिडल में नहीं बोला, डायरेक्टली कि तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, जिससे बात करो करो, लेकिन 10 of 5 FIFE नहीं, FIFE 5 से दूर रहो। 10 of 5 कौन था? मैकडफ। उनसे थोड़ा दूर रहो। सेकेंड स्पिरिट बोला कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा जो मदर के वूम से नेचुरली जन्म लिया है। तो ये सुनकर वो कॉन्फिडेंस उसको फिर से आ गया, बोला कि सभी तो मदर के वूम से ही जन्म लेता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। थर्ड विच और भी कंफर्म किया, बोले जब तक ना ये फॉरेस्ट, हाँ,
कौन सा फॉरेस्ट का नाम है, बर्नम, बर्नम फॉरेस्ट, BIRNAM, बर्नम फॉरेस्ट जब तक न चले, हाँ जब तक ना मूव करे, तब तक तुम्हारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नाउ ही थॉट कोई भी फॉरेस्ट खुद से नहीं चलते, फॉरेस्ट एक जगह बैठे रहते, एक जगह रहते, तो दैट मीन्स माई लाइफ इज फुल्ली सिक्योर्ड। वो हंसने लगे। मैकडफ, हाउ कुड देन मैकडफ किल मैकबेथ? जब लास्ट बैटल दिखा रहे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, जब हम देखेंगे कि मैकबेथ वर्सेस मैकडफ का जो बैटल हो रहे हैं, उधर मैकडफ क्यों मार पाए डिस्पाइट द प्रोफेसी कि मैकडफ से दूर रहो और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जो मदर का ऊम से जन्म लिया है। ऐसा हुआ घटना कि बर्नम वुड का जो बड़ा बड़ा पेड़ था, वो पेड़ को काटा गया था और पेड़ को सामने रखते हुए इंग्लैंड का जो आर्मी था ना, वो इंग्लैंड का आर्मी सामने पेड़ को रख के रस्सी से, मोटा मोटा रस्सी से बांध लिया और चलना शुरू किया एक एक करके। अब सोचो, दूर से कोई देखे, ऊपर से कोई देखे, क्या लगेगा कि द एंटायर फॉरेस्ट इज मूविंग, बिकॉज द आर्मी मीन्स अ टीम ऑफ सोल्जर्स। तो टीम ऑफ सोल्जर्स, हर सोल्जर के सामने अगर बड़ा बड़ा पेड़ रखा हुआ है और रस्सी से बांधा हुआ है और वो एक लाइन में चले, क्योंकि सोल्जर को तो ट्रेनिंग मिलता है चलना, फाइट करना, इधर उधर तो नहीं भागेंगे, एकदम लाइन से चल रहे हैं। तो दूर से कोई देखे, अपने पैलेस में बैठकर मैकबेथ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। बोला गया था तो फॉरेस्ट मूव नहीं करेंगे, फॉरेस्ट तो मूव कर रहे हैं, चलो मैं फाइट करूंगा। अगर मेरा जीवन का अंत आ भी गया, आई विल स्टिल फाइट टिल द लास्ट। ठीक है, सो इट वॉज अ ग्रेट फाइट, मैकबेथ वर्सेस द एंटायर आर्मी ऑफ इंग्लैंड। इमेजिन, मैकबेथ अकेला और पूरा आर्मी उनके साथ लड़ रहे हैं, फिर भी हार रहे हैं, क्योंकि अ टाइगर इज डेंजरस बट अ वुंडेड टाइगर इज मोर डेंजरस। ठीक है, तो वो मारते 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 चले गए और जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ जो थे, कमांडर इन चीफ था मैकडफ। यूजुअली क्या होता है, कमांडर इन चीफ लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बट मैकडफ को पता था कि अगर मैं फ्रंट रहूं तो मैं ही पहला मैंने विक्टिम बन जाऊंगा, क्योंकि मैकबेथ मुझको ही पहले मारेंगे, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए आई विल बी एट द बैक ऑफ द आर्मी, आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द आर्मी, all right, but I will lead not from the front, but I will lead from the back. Okay, because he knew that एक एक करके मारते मारते जब आएंगे मैकबेथ, ऑटोमेटिकली वो थक जाएंगे। एक दूसरा चीज, मैकडफ को पता था वो कि उसको कैसे मारेंगे, वो जो सीक्रेट मैकबेथ को पता नहीं था। ठीक है, तो मारते 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 गए, लास्ट में था मैकडफ। मैकडफ के सामने जब आया मैकबेथ, तब मैकबेथ हंसने लगे, बोला कि तुम मुझको मार नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा आर्मी को मैं डिफीट कर दिया। नाउ यू आर द ओनली वन लेफ्ट, आई विल बी एबल टू किल यू ऑल्सो, बिकॉज द प्रोफेसी वॉज सच कि मैकडफ वॉज सेइंग दैट आई विल किल यू, एंड मैकबेथ वॉज लाफिंग कि तुम मुझको मार नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पूरा आर्मी को नष्ट कर दिया, उसको डिफीट कर दिया, और सामने तुम हो, तुम अकेला मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एंड इट वॉज प्रोफेसीड टू मी दैट एनीबॉडी born normally of a mother's womb will not be able to kill me. तो सभी तो मदर के womb से लिए जन्म लिए, so you are not an exception, you will not be able to kill me. Then Macduff, now it was the time of Macduff to laugh in front of Macbeth, saying that you are wrong. Witches बात करते हैं रिडल में, ताकि आधा समझ में आए आधा समझ में ना आए। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, मैं मदर के उम्र से तो जन्म लिया हूं जरूर, लेकिन मैं नॉर्मली, ये जो वर्ड नॉर्मली था, नेचुरली, इसको तुम ओवरहियर कर दिया, इसको तुम नजरअंदाज करके चले गए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन टू से दैट आई वाज नॉट बोर्न नेचुरली, I am not a normal child. That doesn't mean that he's an abnormal child. He's a normal child. But biological delivery का दो टाइप होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी, एक सी सेक्शन डिलीवरी, जिसको सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं। तो आई एम बोर्न अ सिजेरियन बेबी,
My mother's womb was operated and I was taken out. I didn't experience normal delivery. So ये जो बोला गया था ना, नेचुरली नॉर्मली जो बॉर्न हुए वही एकमात्र तुमको मार नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी सब माने इनके अलावा और कोई मार पाएंगे. तो आई एम दैट चाइल्ड हु वाज नॉट बॉर्न नेचुरली, सो आई विल बी एबल टू किल यू फॉर श्योर. Then Macbeth understood that my day has come and he will be killed like anything. ठीक है. And not only that, he will be killed very brutally. ऐसा कि चाकू मार दिया, डेड बॉडी हो गया ना, उसका एकदम माथा बॉडी से अलग किया जाएगा. और वो माथा को ठीक जैसे ये पोल खड़ा है सामने, वो बैम्बू का एक पोल के ऊपर उसको ऐसे रखा कर बोलेंगे कि कोई अगर नेशन के खिलाफ या देश के खिलाफ बेईमानी करे, मैकबेथ की तरह ऐसे बिट्रे करे, राजा को मर्डर करे, राजा को असम्मान करे और एक एक करके मर्डर करते रहे और देश के खिलाफ जाए, तो उसका नतीजा ऐसा ही होगा. पूरे देश को दिखाया. एंड दैट इज हाउ. एंड अगेन हु विल बी प्लेस्ड इन द किंग, हु विल बी प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड एज द नेक्स्ट किंग? वो जो मैल्कम था, जिसको एक्चुअली राजा बनना चाहिए था, वो बाद में आकर राजा बनेंगे. ठीक है. नाउ द थिंग इज, the play, if you go to see the play on the stage, you will see that before the curtain falls, Malcolm has already become the new king of Scotland and he is giving a very cunning smile at the audience. इसका मतलब क्या है कि डंकन अच्छा राजा था, मैकबेथ खराब राजा थे, लेकिन मैं उनसे भी खराब बनने वाला हूं. सो जो जाए लंका में वही होता है रावण. द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ठीक है. चलो ओके. इसको सेव करना है. So tomorrow, in the next class, we will start the text. Okay.